The Culture Ministry has now sought a report from the Archaeological Survey of India on the Red Fort damage. Just few hours ago, we saw the Culture Minister Prahlad Patel visit the site, and he said that an FIR will be lodged against those who vandalized the property. Let me go straight to Zeba Warsi. Zeba, when is the report likely to be submitted? Well, we do know that earlier today, Prahlad Patel did visit Red Fort and he took stock of the situation. He also, at that time itself, asked the authorities to come up with a detailed report about the damage done to property at Red Fort, the amount of which damages need to be, reported and recovered as well, and people who are being investigated for the vandalism that took place at the iconic fort. Now we learn from now the latest piece of information that we learn is that Prahlad Patel has sought that report on an urgent basis. So, Maria, perhaps in the coming week, we can expect that detailed report to be submitted to the Ministry of Culture and Tourism. And what will be the charges against those when the FIR is lodged? Well, so far the details of that are not clear at the moment, Maria. But Prahlad Patel, after visiting Red Fort, did speak to the media, and he said that he will want the strictest action to be taken, considering that this is one of the most prominent historical monument in India, not just the national capital, and it was a big security breach. And as far as the damage is concerned, he also took stock of the various aspects of damage that has been done to the fort, especially the security area and the booking room, which is severely damaged. There's severe damage to expensive equipment as well. So certainly after the report is submitted, what action the authorities are planning to take will also be clearer. All right, Zeba Warsi, thank you so much for joining us. And politics is also going on over the Kisan tractor rally, with the opposition now placing the blame for protests turning violent on the government. From the Congress to the TMC to the NCP, all have claimed that centre's unwillingness to repeal laws is the reason why farmer leaders ran amok across capital. Rahul Gandhi and his party men repeated their demand for a rollback of the laws, but none of them condemned the attack on policemen by farm leaders. Several other political stalwarts, from Mamata Banerjee to Sharad Pawar, have all attacked the Modi government. हमने कड़े शब्दों में कल जो हुआ उसकी निंदा करी, और हमने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने ये कहा कि जो हुआ उसकी हम निंदा भी करते हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को इतना खराब होने दिया। भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। किसानों की जायज मांगें, किसानों की जो एक जायज मांग है कि इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए, रिपील किया जाए, उस पे तो अब बात ही ना हो। How do you look at this hypocrisy of farmers' leaders? Ticket saying a few days ago, asking the farmers to bring lathis, and then saying that these are uneducated farmers. How would they know? See, whatever Ticket has said or any other farmer leader has said, probably they are the best people who can explain on this. But I feel if this was a planned strategy, or if it was a planned event, then probably this is a bigger intelligence failure. It is the failure of Delhi police. If government had some apprehensions that such statements are coming, they should have made preventive arrest. They have all the evidences. If they have evidences, they would have made a preventive arrest. In normal case also, there are preventive arrests during Independence Day. एक जो कुछ हुआ दिल्ली में, मुझे एक दिन की बात नहीं, ये 50-60 दिनों से, चाहे सिंधु बॉर्डर हो या अन्य बॉर्डर हो, वहाँ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान, वहाँ के किसानों जत्थे से इतने दिनों से बैठे हैं। एक पूरा किसानों का वर्ग को, हिस्से को टारगेट करके, उनको चाहे खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है, इस तरह की उनके बारे में एक भाषा इस्तेमाल करके उनको एक तरह से दूर करने का प्रयास करना,
इसकी ये रिएक्शन है। 61 दिन हुए कि ये सब किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये स्थिति जो है वहां का जो अभी ठंडी है, बहुत ठंडी है, उसमें वो आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन 61 दिन आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन, हिस्टोरिकल आंदोलन ये हो रहा है। और 61 दिन के बाद उनके मन की स्थिति आपने पहचाननी चाहिए कि कैसे मन के, लेकिन प्रजासत्ताक दिन के दिन ये किसानों के लिए और ये जनता के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। प्रजासत्ताक दिन नहीं लग रहा, वो काला दिन लग रहा है। ये स्थिति आज है। Shifting focus to a CNN News 18 exclusive now. High drama continues to brew between West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her former close aide and now BJP leader Shubhendu Adhikari. In an exclusive conversation with CNN News 18, Shubhendu said that he will be contesting from his constituency of Nandigram, even though Didi has declared that she will be contesting from there as well. Adhikari also asserted that anyone who contests from a BJP ticket from Nandigram will definitely defeat Mamata Banerjee by over 1 lakh vote. क्या ये लड़ाई आपके लिए एक पर्सनल प्रेस्टीज बैटल अब हो गई है? ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। क्या आप भाजपा के उम्मीदवार होंगे वहां से? आप उनको चुनौती देंगे? बीजेपी देशभक्त पार्टी है और मोदी जी का लीडरशिप में इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, मैं बचपन से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ। क्लास 11 से छात्र NSU के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन किया, पार्षद रहा, लॉन्ग मेरा पॉलिटिकल बैटल है। इसलिए मैं इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और इतना देशभक्त पार्टी, जो पार्टी आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट एज पर मेंबरशिप लार्जेस्ट पार्टी है, इस पार्टी के साथ मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, एक अनुशासित सिपाही के नाते, एक पार्टी का परिवार की सदस्य के नाते काम करूँ। इफ बीजेपी पार्टी डिसाइड शुभेंदु तुमको कंटेस्ट करना पड़ेगा नंदीग्राम में, तुम्हारी लोकसभा क्षेत्र दो बार 2009 2014 में मैं उस क्षेत्र से MP था, 2016 से मैं उधर MLA था। मैं रिजाइन करके बीजेपी में ज्वाइन किया। बीजेपी का निर्देश होने से मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड आपका पास बोलता हूँ आपको, कमल का निशान पर जो खड़ा होगा वो कैंडिडेट 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से ममता बनर्जी को हराएगा। लिख लीजिए मेरा नाम लिख। तो क्या शुभेंदु अधिकारी भाजपा के चेहरा हैं इस इलेक्शन में? क्या आप बीजेपी के CM कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं? या बीजेपी में ऐसे डिसीजन पर्सनली नहीं होता। बीजेपी एक सुसंगठित पार्टी है, उसका डिसिप्लिन पार्टी है, उसका अपने तरीका है। बीजेपी पार्टी में से इस तरीके, और मैं कंटेंडर नहीं हूँ। मैं विदाउट कंडीशन अमित शाह जी को पूछ लीजिए, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया बीजेपी आने के लिए। अमित शाह के पास मेरा बात हुआ था, अमित जी को मैं कोई कंडीशन नहीं दिया। मैं ये सब कंटेंडर भी नहीं हूँ, कंपटीशन भी नहीं हूँ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा भी नहीं है। बीजेपी पार्टी बंगाल में नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर के ऊपर आएगा और सब लोग कलकत्ता में, दिल्ली में एक ही गवर्नमेंट का मांग कर रहा है। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं और जमीन पर अभी वो उतरी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो उतरेंगी तो माहौल बदलेगा। अभी तो उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं किया, तो अगर वो जब चुनाव का कैंपेन शुरू करेंगी तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है? ममता बनर्जी ने जमीन में ही है। पिछले 6 दिसंबर मिदनापुर में रैली की, उस रैली से उन्होंने जमीन में ही है। उसका साथ तो कोई पब्लिक का रिलेशन नहीं है। उन्होंने खासतर हेलीकॉप्टर के द्वारा पब्लिक मीटिंग कर रहा है, सड़क में उतरने का स्कोप ही नहीं है। दूसरा, उसका मीटिंग में खासकर एक समुदाय का कुछ लोग आ रहा है, और दूसरा MCC अब चालू नहीं हुआ। BDO, SDO, पुलिस, स्टेट पुलिस ने कुछ बेनिफिशियरी को ला रहा है। जब MCC चालू होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना बंद हो जाएगा, असली तस्वीर आपका पास मिल जाएगा। क्या आपकी पुरानी पार्टी के लोग आज भी आपसे संपर्क में हैं? क्या और ज्वाइनिंग होगी जब अमित शाह जी फिर से बंगाल आएंगे? और ये कौन से चेहरे हैं?
देखिए, दिल्ली पार्टी टूट रहा है। दिलीप घोष प्रेसिडेंट, मुकुल राय जी वाइस प्रेसिडेंट, कैलाश जी ऑब्जर्वर, मैं भी हूँ, दूसरा लीडर भी है। हर रोज बहुत तरीके से बहुत एरिया में थाउजेंड्स ऑफ टीएमसी सीपीएम कांग्रेस वर्कर्स बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। नॉन पॉलिटिकल आदमी भी आ रहा है, इंटेलेक्चुअल भी आ रहा है। अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है उसमें जो पॉलिटिकल रैली है 31 को हावड़ा और उलबेड़िया में, मेरा उम्मीद है बहुत इम्पोर्टेंट फेस ज्वाइन करने वाला है। उसका नाम अभी बताना ठीक नहीं होगा।